मैंने एक से पूछा, मैंने कहा आपके गुरु, कि वो तो इलाहाबाद में है, मैं आप यहाँ बद्रीनाथ में हो, अच्छी जगह है, सुंदर है, पवित्र है, सब ऑल गुड, पर तुम यहाँ और गुरु वहाँ, ये तो कोई बात समझ नहीं लग रही मेरे। कह रहे गुरु जी ने मंत्र दे दिया था, बस वो मंत्र जपता रहता हूँ। पर गुरु का काम सिर्फ मंत्र देना तो नहीं होता। ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई किंडरगार्टन क्लास में बच्चा गया and they teach this nursery rhymes to the kids. So the kid is learning this nursery rhyme, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. And then he goes next week again, twinkle, twinkle, little star. And after 2 months, the kid said, I'm not going to this school. Mother said, why? My teacher doesn't know anything. She is just saying, twinkle, twinkle, little star, and I have memorized it. There's nothing to learn. Oh no, you have to go to school. Your teacher will teach you something more. You can't stop going to school just because she's repeating it. She's repeating it for you. ऐसे ही संत महात्मा का काम सिर्फ मंत्र देना नहीं होता है। मंत्र दे सकता है, मंत्र से शुरुआत होती है, पर मंत्र ही सब कुछ नहीं होता है। वो कहते हमने मंत्र ले लिया, अब यहां करके रहते हैं, गुफा में रहते हैं। एक समय क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब देयर इज अ फ्री फूड अवेलेबल फॉर ऑल द साधुज हु लिव देयर। क्षेत्र में जाते हैं, भिक्षा खा लेते हैं और फिर सारा दिन अपनी गुफा में रहते हैं। बीच बीच में कभी नदी में आ गए, कभी कभी किसी दूसरे साधु को मिल लिए, एंड दैट्स इट। तो वैराग्य तो बहुत सुंदर, पर इसे सीखा क्या? इससे आगे कैसे बढ़ेगा वो? ये तो किंडरगार्टन का ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गया ना। ये तो जैसे कोई कहता है कि हम उपवास करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, इट्स गुड। एंड यू नो व्हाट, दीज डेज even the gym people and the dietitians are talking about intermittent fasting. So Jainis have been doing fasting their whole life. Now everybody is becoming half Jaina because they are also fasting. The gymmers are fasting 16 hours, 18 hours, everybody is fasting. Some are doing it for 2 days, some are doing for more, some are doing for less. But their reasons are different. What is their reason? To make the body stronger and leaner and muscular. That is what their reason is. Nothing to do with dharma. Now, would they gain anything by fasting? Would they gain anything out of fasting? No, they will not. Because the purpose is altogether different. अच्छा, इसमें थोड़ा एक पॉइंट और निकल के आता है। अफ्रीका में, even Bharat mein, there are people who don't see food for days and days. Can we call them they are fasting? I was just reading a refugee from Syria said that I haven't seen food for weeks. Now he is a Muslim, but can he say I am doing roza? I haven't seen food, I haven't eaten food. But he cannot say he's doing roza. He's just deprived of food. He doesn't have the access to food. So not having access to food doesn't make it a fasting. अच्छा, एक इसमें और बात आती है। देखो बात से बात कैसे निकलेगी। कई लोग फास्ट करते हैं, बोले हमारा फल का फास्ट है, we'll just eat fruits. That is very expensive fasting. Very, very expensive. And then they say हम एक फला उपवासी हैं, एक ही फल पूरे दिन में खाएंगे। अच्छा, क्या खाएंगे वो चुन लेते हैं। हम खरबूजा खाएंगे। अब मैनचेस्टर में खरबूजा मिल ही नहीं रहा। अच्छा, मिल भी रहा है तो बड़ा महंगा मिल रहा है। तो पतिदेव सोचते इससे अच्छा तू अपना दाल ढोकली खा लेती, वो ज़्यादा अच्छा था। घर में थेपला था बना, वो खा लेती, फाफड़ा खा लेती। वैसे अनफॉर्चुनेटली आई हैड बीन टॉकिंग होल डे अबाउट फूड टू वेरियस पीपल, दोज हु आर ट्रैवलिंग विद मी, the UK residents. I was talking to them. I am asking just one question. I will ask you people also. What do you eat in breakfast?
Now, let me say first, then if you have some different answer, then you raise your hand, then I'll listen to you. Most of them said they eat cereal. अभी सीरियल तो देखने का होता है, ये खा भी रहे हैं. वो कहते सीरियल, then the second was Weetabix, and third was toasts. बोले ये 3 हम रोज खाते हैं. मैं हे भगवान, see, what you eat will become your body. And if you're eating this cold milk cereal every day, the body will go cold, meaning more congestions in your body, meaning you will have more sinusitis, you will be having lot of fat, you will be having slower digestion, you will be having bloating and belching and flatulence. And you will be wondering, oh, I should go to physician and I should go to pharmacist to get a medication. My dears, you need to just change your breakfast. You don't need medication, just change your breakfast. Now, pertaining to food, one more thing which arises is, I really wonder, you Gujaratis especially are so good in making money. Am I saying wrong? I know it. I am half Gujarati actually. But I was wondering how come no Gujarati has ever opened up a shop to sell all their salty, savory things which they make at home and eat. Because they are all so good. And anybody who is conscious of their health should be eating that, irrespective of whether they are Gujarati or not Gujarati. Because most of the food which will be prepared, now I don't have to go into list of names, you know it. So all those things are either made of the chickpea flours, or it will be made from dal powder, or it will be used the green leaves in which you will wrap it up and then steam it up. It's very good things. But yet I find all the Gujaratis eating, and all the other people to whom I talk, they're all eating cereal. Oh, don't do that to yourself. It's a torture. एक महिला कह रही थी, मैं 40 साल जॉब किए हैं तो 40 साल रोज सीरियल खाया. वो इतनी मोटी है, पैर उसके सूजे हुए हैं, हालत उसकी खराब है. मैं जो सीरियल तूने खाए थे ना, वही निकल रहे हैं अब बाहर. हाँ, वही निकल रहे हैं बाहर. नो स्ट्रेंथ, नो एनर्जी इन द बॉडी, and feeling so bloated all the times, and the weight is there. And she says, oh, I don't eat anything at all. I said, but you should be eating something. Who said eat this only? So food is important, but one should know what to put in mouth and what not to put in mouth. आपको ये मालूम होना चाहिए मुंह में क्या डालना है क्या नहीं. अभी बिना सोचे कुछ भी डाल लेते हैं. जैसे शाम के समय हो तो दही खा रहे होते. अरे पागल हो क्या? आयुर्वेद कहता है दही शाम के समय खाओगे तो वो जहर बनेगा. त्रिदोष कारक होता है दही, माने तीनों, वात पित्त कफ तीनों को बिगाड़ देता है. तो किसी को जल्दी मारना हो या बीमार करना हो, उसको रोज शाम को दही खिलाओ. उसको कहो भैया बैठो खाना खाओ, खाने में दही दो उसको. And then they mix up the fruit and the yogurt. Not good at all. You never mix milk with any acidic fruit ever. And it is so difficult, when somebody says, Guru Ma, come to my home to eat, and oh no, it will be torture, because you won't be having that stuff what I eat. And what you eat, I am never going to eat. So I don't know where will this requirement meet then. जब आप उपवास करते हैं तो वो उपवास तब होता है जब पूरे दिन आपके मन में एक पल के लिए भी खाने का ख्याल भी ना आए. क्यों? क्योंकि आपका मन सुमिरन में लगा हुआ है, आपका मन भजन में लगा हुआ. अब पर्युषण में उपवास तो कर लिए, पर वो देख रहा है कब पूरा होगा, कब पूरा होगा. अच्छा, रख लेना, मैं बाद में खाऊंगा. रख लेना, मैं बाद में खाऊंगा. आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, संभालो, बस 3 दिन रह गए, पूरा हो जाना है. देवा आरती करेंगे, सीधे मैंगो आइसक्रीम पे टूट पड़ेंगे.
इसको उपवास करना नहीं कहते हैं, इसको तपस्या नहीं कहते हैं। आपका फास्टिंग कब होता है? जब तुम्हारे मन में भोजन का ख्याल भी नहीं आ रहा है, और जब पेट में भूख लग जाए उस समय तुम अपने विवेक से शरीर की ओर देखते हुए कहते हो, अमा शरीर ये मैं नहीं हूं, और अपनी भूख पर ब्रेक लगाओ, हम तुम्हें भोजन नहीं देने वाले। See, there are two ways to live. One is that you consider the body as me, and the another is that you consider the body as your vehicle. शरीर को मैं समझ के अगर आप जी रहे हैं तो आप अज्ञान में जी रहे हैं, और शरीर मेरे उपयोग का यंत्र है। जैसे कार हो, ऐसे ये मेरी कार है और इस कार का मैं इस्तेमाल करता हूँ, और ये शरीर मैं नहीं हूँ। तो शरीर की जो भी मांग होगी वो सिर पर इतनी जोर से सवार नहीं होगी कि उसको पूरा करने के लिए तुम ही मरे चले जाओ। शरीर मैं है और शरीर मेरा है, ये दोनों भ्रांतियां हैं। आप भ्रांति शब्द समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग द वर्ड? इज इट गेटिंग टू डिफिकल्ट? Are you getting the word Bhranti? Misconception. I am this body and this body belongs to me is a misconception. That is not reality, that is not true. But if you are living with this misconception, then your body demands will not be body demands, then it will be your demand. तब आप ये नहीं कहेंगे शरीर को भूख लगी है, आप कहेंगे मुझे भूख लगी। आप ये नहीं कहेंगे कि शरीर थक गया है, आप कहेंगे मैं थक गया हूं। आप ये नहीं कहेंगे शरीर बूढ़ा हो गया है, आप कहेंगे मैं बूढ़ा हो गया हूं। और मरण किनारे हुआ तो आप ये नहीं कहेंगे कि शरीर मरने वाला है, आप कहेंगे मैं मरने वाला हूं। मैं और शरीर की अगर इक्वेशन है तो आप अज्ञानी हैं, और ये शरीर मैं नहीं है, ये शरीर मुझसे अलग है। अगर आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको एक धार्मिक व्यक्ति मानूंगी। जैसे आप ये वस्त्र पहनते हैं, जरूरी हैं, पशु की तरह आप नंगे नहीं रह सकते हैं, इसलिए वस्त्र जरूरी हैं, पर वस्त्र तुम नहीं हो। वस्त्र तुमसे भिन्न है, तुमसे अलग है। ऐसे ही ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर तुमसे अलग है, तुमसे भिन्न है, तुमसे अलग है, सेपरेटेड है, डिफरेंट है। अब तो बात ही बदल जाती है इसमें। अब शरीर को भूख लगी और तुम खाना ढूंढने निकल पड़े, और समय असमय कभी भी तुम अगर खाते हो तो आप में और फिर पशु में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। पर वैसे में एक बिल्कुल जो अनुभूत बात है, what I have experienced is this, that we have cows in ashram, so we rear them very beautifully and nicely, and they are such a beautiful animals. And I have seen that when they eat grass or the fodder, they don't drink water. Cows do that. जब एक गाय घास खाती है, चारा खाती है, तब उस समय पर गाय पानी नहीं पीती, और करीब 2-3 घंटे बाद जब वो घास खा लेती तो वो बैठ के जुगाली करती, क्योंकि उनके 2 पेट होते हैं, एक में जाती, फिर वो निकालती, फिर चबाती, फिर अंदर करती, फिर निकालती। तो उस जुगाली के 3 घंटा बाद वो फिर पानी पीती। तो इसका पानी पीने का समय अलग है और चारा खाने का समय अलग है। एंड यू नो व्हाट, दिस इज द एडवाइस which Ayurveda gives to all human beings.
that you should not drink water with the food. कि जब खाना खाओ तब उसके साथ पानी नहीं पीना चाहिए, खाना हजम नहीं होगा। खाना खाने से 1 घंटे पहले खाइए या खाना खा लेने के 1 घंटे बाद खाइए, बीच में नहीं। थोड़ा 1-2 घूंट ले तो ले, नॉट ये नहीं कि गटागट पूरा का पूरा पानी पी गए। तो गाय को हम देखते हैं, उसने आयुर्वेद की एक भी किताब नहीं पढ़ी। आई हैव सीन देम, दे कांट रीड। हम उसके सामने किताब रख दें, मेरी लिखी किताब लिख दें, वो मुझे पहचानती है, मैं अपनी किताब उसके सामने लिख दूं, वो किताब को खा जाएगी वो, पर वो पढ़ेगी तो नहीं। लेकिन फिर भी गाय या कोई भी पशु नेचर के बहुत करीब और नेचर के बहुत साथ रहते हैं, इसलिए वो जब खाते हैं जब उन्हें भूख होती है, और जब खाते हैं तो पानी नहीं पीते हैं। और शाम 6 बजे के बाद अगर आप उनको कुछ खाने को देंगे तो वो नहीं खाएगी। वो जैनी नहीं है, बिल्कुल जैनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सूर्यास्त के बाद कभी नहीं खाती। तो वो चुपचाप अपना या तो बैठेगी या तो खड़ी रहेगी, लेकिन खाएगी नहीं, पिएगी नहीं। कितना नेचर के साथ चलती है। आदमी जानवर हो गया, जानवर प्रकृति के साथ चल रहा है तो ज्यादा संयमित है। दे आर मच मोर डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड देन द प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स। वो तो भाई पहले तो जब मैं बाहर आती थी विदेश में तब ऐसा देखने को मिलता था। अब यहाँ की कॉपी हम भारत में 1000 गुने ज़्यादा हो रही है। मैं यहाँ देखती थी लोग बर्गर हाथ में लिया, खा रहे हैं और चल रहे हैं, है ना, चलते चलते खा रहे हैं, चलते चलते पी रहे हैं। भाई इनको तो समझ ही नहीं है बेचारे। पर अब क्या है, वो सब वहीं भारत में भी खुल गए हैं, तो वो भी उसको फास्ट फूड कहते हैं। तो कहते हैं भाई चलते चलते खाओ और चलते चलते पियो। अब इतनी भी अकल नहीं रह गई कि बैठ के खाओ और बैठ के पियो। तो इंसान तो इतना असंयमित होता जा रहा है।